Statistics test of hypothesis concerning the difference between two population proportions. Situations often arises where we wish to test the hypothesis that the two proportions are equal or differ by special amount. For example, we might try to prove that the proportion of merit teacher in one district is greater than the proportion of merit teacher in another district. We test the null hypothesis that the difference between the two population proportions or two binomial parameters is equal to some given value d naught. However, we often test the hypothesis that the difference is zero or the two population proportions are equal. हम दो चीज़ें टेस्ट करते हैं क्या, एक तो एच नॉट हम देखते हैं कि P1 माइनस P2 जो है डी नॉट है, इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में कुछ फ़र्क है, कोई वैल्यू है जिसका डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में. तो when the null hypothesis H0 P1 minus P2 is equal to D naught is true, the test hypothesis for testing hypothesis about difference between the two population proportions. तो हमारे पास क्या होगा, Z क्या होगा, Z is equal to P1 minus P2 minus D naught के इनके दरमियान में है कोई फ़र्क है, एक मखसूस वैल्यू है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट P1 minus P1 into 1 minus P1 by N1 P2 1 minus P2 by N2, where P1 and P2 are the two population proportions of the attribute under investigation. The appropriate statistics on which we base our decision is the random variable P1 cap minus P2 cap, and P1 cap and P2 cap are the two sample proportions. The critical region for the specified level of significance alpha and appropriate alternative hypotheses are established as usual. कैसे होंगी, Z is less than minus Z alpha for the alternative hypothesis P1 minus P2 is less than D naught. Z क्या होता है, लेस देन माइनस Z alpha होता है जब P1 माइनस P2 किससे छोटी होगी, उस D naught से. इसी तरह Z is greater than Z alpha होगा for the alternative P1 minus P2 is greater than D naught, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z is greater than Z alpha by 2. ये टू टेल टेस्ट हो गया. ये क्या होगा, Z is less than minus Z alpha by 2 and Z is greater than Z alpha by 2 for the alternative. जब हमारे पास alternative होगी क्या, P1 minus P2 is not equal to D naught. अब नंबर 1 केस 1 assume D naught is equal to 0, कि हमारे पास P1 P2 जो है ये इक्वल है. दैट द नल हाइपोथेसिस इज H नॉट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0. अंडर द अजम्पशन P1 माइनस P2, तो हम क्या कहते हैं कि P1 माइनस P2 जो है P1 इज इक्वल टू P2, ये एक और हमारे पास वैल्यू है P, उसके इक्वल है, द कॉमन प्रोपोर्शन है ये. द स्टैटिस्टिक Z इज गिवन बाय, अब हमारे पास Z स्टैटिस्टिक क्या हो जाएगी, P1 कैप माइनस P2 कैप divided by under root P1 into 1 minus P1 divided by N1 plus P2 1 minus P2 by N2. अब हम क्या कह रहे हैं कि P1 P2 एक और P के बराबर है. अगर यहाँ पे भी P है तो ये भी P इंटू 1 माइनस P हो जाएगा और ये भी P इंटू 1 माइनस P. तो हम क्या करते हैं, P1 हैट माइनस P2 हैट डिवाइडेड बाय अंडर रूट, क्या कॉमन ले लेंगे, P इंटू 1 माइनस P, P 1 माइनस P कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाय N1 प्लस 1 बाय N2 आ जाएगा. ये हमारे पास इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल व्हेन H नॉट इज़ ट्रू एंड N1 N2 आर लार्ज. द वैल्यू ऑफ द P मस्ट बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैम्पल प्रोपोर्शन P1 हैट एंड P2 हैट. द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द कॉमन प्रोपोर्शन इज़ द वेटेड मीन ऑफ दिस टू सैम्पल प्रोपोर्शंस गिवन बाय, हम वेटेड मीन प्रोपोर्शन जो है ना वो मालूम कर लेंगे दोनों का. वेटेड मीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का कैसे, इसको हमने P बार से डिनोट किया, N1 P1 डिवाइडेड बाय N2 P2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 यहाँ पे. अब देखिए तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, P1 माइनस P2 है डिवाइडेड बाय अंडर रूट P
bar into 1 minus p bar into 1 by n1 plus 1 by n2. To test the hypothesis that the two population proportions are equal when the samples are large. ये हम कब करेंगे? जब हमारे पास हाइपोथेसिस होगी कि दोनों पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस इक्वल हैं और सैम्पल साइज लार्ज है। एग्जांपल है हमारे पास 3.14. A sample of 100 saving account at a certain bank showed that the 20 were overdrawn. Another sample of 125 current account of the bank showed that 30 were overdrawn. To test at alpha is equal to 0.02 level of significance, the null hypothesis that there is no difference in the proportion of overdrawn accounts. हमने वो क्या देखना है, हमने कहते हैं वो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं है, जो अकाउंट्स हैं ओवरड्रॉन अकाउंट्स के प्रोपोर्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम क्या करते हैं, P1 एंड P2 डिनोट करते हैं रिस्पेक्टिवली दी पॉपुलेशन ऑफ टू ओवरड्रॉन सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स। वी हैव टू डिसाइड वेदर दी टू हाइपोथेसिस। अब सबसे पहले H0 P1 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास P2। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ ओवरड्रॉन अकाउंट्स। H1 हमारे पास क्या होगा, P1 इज़ नॉट इक्वल टू P2। देयर इज़ अ डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ ओवरड्रॉन अकाउंट्स जब ये नॉट इक्वल टू। क्रिटिकल रीजन एब्सेंट, क्योंकि क्या है आपके पास नॉट इक्वल टू है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z इज़ ग्रेटर देन 2.33, यानी Z लेस देन भी होगा -2.33 से एंड Z ग्रेटर देन होगा 2.33। क्रिटिकल रीजन -2.33 से कम और 2.33 से ज़्यादा। कंप्यूट करते हैं हम, n हमारा n1 कितना 100 का, n2 कितना का है 125, तो P1 कितना हो जाएगा 20। उसने 20 कहा था आपको ना, 100 में से कितने हैं 20, 20 बाई 100 0.2, P2 30 बाई 125 0.24। अब हम कॉमन प्रोपोर्शन 100 इंटू 0.2 प्लस 125 0.24 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 125, 20 प्लस 30 बाई 100 प्लस 125, 50 बाई 225, तो हमारे पास P बार कितना आ गया है 0.22 आ गया। Z इज इक्वल टू P1 हैट माइनस P2 हैट डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये जो हमने अभी कॉमन बल्कि इसको क्या कहना चाहिए, कंबाइंड P जो निकाला था ना, प्रोपोर्शन जो था प्रोपोर्शन का कंबाइंड मीन ये वो है P कैप इंटू 1 माइनस P कैप इंटू 1 बाई N1 प्लस 1 बाई N2। 0.20 0.24 ये कितना था 0.22, 1 माइनस 0.22 करेंगे तो 0.78 इंटू 1 बाई 100 प्लस 1 बाई 125 है आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना है, ये है आपके पास 1 बाई 100 और 1 बाई 125। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये -0.72, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपके पास -0.72 कैलकुलेशन जब कर लेंगे। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 0.72, हमने तो एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है ना इसकी, इज़ लेस दैन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ 2.33। क्रिटिकल वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2.33 और ये 0.72 जो है 2.33 से छोटी है, तो ये डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन। अब ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही। क्रिटिकल रीजन हमारा कितना है, ग्रेटर देन है 2.33 से। ये देखिए क्रिटिकल रीजन जो है ना वो हमारा किससे बड़ा है 2.33 से, और यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0.72, एब्सोल्यूट वैल्यू जब इसकी लेंगे ना 0.72, तो 0.72 छोटा है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास फॉल कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z जो है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही। सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0, हम H0 को रिजेक्ट नहीं करते 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। Thus there is no difference in the proportion of overdrawn accounts, तो हम कहते हैं कोई फ़र्क नहीं है जो प्रोपोर्शन है overdrawn accounts के उसमें। अच्छा, अब इस ये आपके पास जो थे प्रोपोर्शन के सवाल कौन कौन से थे, एक्सरसाइज करनी है आपने। प्रोपोर्शन के कौन कौन से सवाल हैं, 3.16 जो है ना सिंपल प्रोपोर्शन का है, उसका A पार्ट भी है, B पार्ट भी है, 3.17 भी सिंपल प्रोपोर्शन का है, 3.18 भी और 3.19 भी।
अब डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का कौन कौन सा आज आपने करना है, 3.20 करना है। उसका ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट आप करेंगे। कल मैं उसकी बाकी जो दूसरा केस है वो करवाऊंगी आपको। डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, कल इंशाल्लाह ये टॉपिक हम ख़त्म कर लेंगे।